Good morning, students. Today we are going to discuss a very important cell organelle known as plastid. They are present in cytoplasmic liquids in eukaryotic plant cells. The term was first used in 1885 by a biologist A.F. W. Schimper to include the cell organelles which are primarily involved in the synthesis and storage of carbohydrates. Depending on the color of pigments, plastids may be of three types, that is green chloroplast, colorless leucoplast, and colored chromoplast. The most important and widespread of the plastids are chloroplasts, which are found in all green plants. They are of great biological importance since they produce chemical energy by photosynthesis. They are found in all green plants from algae to angiosperms. They vary in size, shape, and chemical organization. In higher plants, they are mostly present in palisade and spongy parenchymatous tissues of leaves and cortical cells of young stems. They are disc-shaped structures measuring 4 to 10 micrometers in length and 1 to 3 micrometer in breadth. 1 micrometer is equal to 1,000th of millimeter, 10 to power minus 3. The number of chloroplasts per cell is different in different plants. In higher plants, generally there are 20 to 40 chloroplasts per cell. Each chloroplast is enclosed by a double membrane of lipoprotein, which is 40 to 60 angstrom, and 1 angstrom is equal to 10 to power minus 6 millimeter. The space enclosed by the double membrane envelope is known as stroma. It is filled with a proteinaceous matrix and contains a complex inner membrane system. The stroma also contains starch grains, and it is the site of complex dark reaction in photosynthesis process. According to the studies of electron microscope, the inner membrane of the chloroplast extends at several points to form a lamellar system. These lamellae are stacked one above other, and these stacks are known as grana, and singular is granum. These are the centers of light reaction of photosynthesis. They are usually 40 to 60 grana in a mature chloroplast. These grana are interconnected by stroma lamellae, which are not stacked. Each granum is composed of 5 to 25 disc-like structures, and each disc encloses a space, and this structure is known as thylakoid. The lamellae of the disc are composed of alternative layers of lipid and aqueous protein. These layers are separated by monomolecular layers of chlorophyll and carotenoid molecules, as you can see in the structures given in my lecture. On the inner surface of the lamellae membrane, small spherical structures are present. These structures are known as quantasomes, and they are the structural and functional unit of chloroplast. Each quantasome is capable of absorbing a mole quantum of light. The chloroplast contains about 30 to 35% protein, 20 to 30% phospholipids, 5 to 10% chlorophylls, and 4 to 5% carotenoids. In addition, ribosome, DNA, and starch grains are also present in the stroma. The main function of chloroplast
is to synthesize food material by photosynthesis process, and beside photosynthesis they can synthesize fatty acids and proteins also. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिका के अंग के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। केवल यूग्लिना में यह जंतु कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले 1865 में हीकल द्वारा इनकी खोज की गई थी और इनको शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने 1885 में प्लास्टिड शब्द का नाम दिया था। यह डबल यूनिट मेम्ब्रेन या दो कलाओं से घिरी हुई गोल या अंडाकार संरचनाएं होती हैं तथा यह 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें शिम्पर ने रंगों के आधार पर बांटा था। पहला ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक, दूसरा क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होते हैं जो पौधों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों जैसे भूमिगत तनों में या जड़ों में पाए जाते हैं और भोजन को संग्रह करते हैं। दूसरे क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं, जो कलर के कारण इनको रंग क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक कहा जाता है। यह पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों, फलों, कलियों आदि में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण के तौर पर फियोप्लास्ट या भूरे रंग के वर्णी लवक होते हैं। रोडोप्लास्ट ये लाल रंग के वर्णी लवक होते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लवक या प्लास्टिड हरित लवक कहलाता है। इसकी खोज शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने की थी और हरे पौधों का हरा रंग इसी लवक के कारण होता है। यह हरे पौधों में अधिकतर पत्ती की मीजोफिल सेल्स या पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक तथा फीते के आकार के हो सकते हैं, जो विभिन्न लंबाई के होते हैं और इनकी लंबाई को हम माइक्रोमीटर में अगर प्रेजेंट करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर की लंबाई और औसतन 2 से 4 माइक्रोमीटर की इनकी चौड़ाई होती है। इनकी संख्या पौधों में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास या हरित शैवाल में यह 1 तथा उच्च वर्ग के पौधों की कोशिकाओं में ये 20 से 40 तक पाए जाते हैं। हरित लवक एक दोहरी प्रोटीन की बनी एक यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं और इनके अंदर एक अर्ध ठोस द्रवीय पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम पीठिका या स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। पीठिका में चपटी झिल्ली युक्त हरे रंग की थैली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम थाइलेकॉइड के नाम से जानते हैं। और जब यह सिक्कों या कॉइन्स के ढेर के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं तो ये एक विशेष प्रकार की संरचना को बनाती हैं, जिसे ग्रेनम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं जो ग्रेनम को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट्स के नाम से जाना जाता है, या उन्हें पीठिका पट्टलिकाएं भी कहते हैं। थाइलेकॉइड के अंदर जो खाली स्थान उपस्थित होता है उसे हम ल्यूमेन या अवकशिका का नाम देते हैं। हरित लवक की पीठिका में या स्ट्रोमा में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में द्विकुंडलित डीएनए, 70S प्रकार के राइबोसोम तथा आरएनए भी पाए जाते हैं और यह एक हरित लवक अर्ध स्वायत्ती या सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग भी कहलाता है। हरित लवक के मुख्य कार्य
सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पौधों की हरी पत्तियों में भोजन का निर्माण करना है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होती है। इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर या किचन हाउस भी कहा जाता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन संपन्न होती है, जबकि ग्रेना एवं स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। यह फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की दो मुख्य क्रियाएं हैं, जिन्हें हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इन्हीं के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं।